Hello guys, what's up? I hope you guys are doing absolutely great. So today's video will be about how can we actually prepare for CMAT exam, right? In the previous video we have actually learned about the test exam. Now we'll be learning about how can we actually prepare for the CMAT exam. So this video is presented to you by cmatking.com. You can visit cmatking.com for the preparation of your CMAT exam, and you can also find relevant content over there, meaningful content and relevant, which is actually very useful if you were to actually prepare for CMAT exam. Talking about my own self, I had appeared for CMAT last year. I got 99.39 percentile, but I could not convert JVIMS, therefore I'll be repeating again. Right? So moving on to the very next slide. See, now we have to understand the prominent colleges of CMAT, right? So understand that the prominent colleges which are there in CMAT are actually JBIMS, Jim Goa, Shimshri, NIBM, NIA Wellinger, KJ Somaya. So I'll be discussing in a little bit of detail that what sort of colleges are these actually, right? So now talking about the JBIMS program, guys. Okay. So JBIMS is actually the flagship, actually sort of college which you can get from CMAT exam. JBIMS actually falls in the top 10 colleges of our country, right? Especially for management. And in terms of ROI, it is actually in the league of FMS, TES, and I guess then Jamnalal Bajaj comes, right? So it is a very good college with respect to your return on investment, right? Because I guess around 6 lakh rupee fee hai, and then eventually 6 lakhs for 2 years, but the average package is actually very great, like it's booming, right? Similarly, the other colleges are Jim Goa. Jim Goa is also a very good package. In fact, I know someone who has left actually IIM Sirmaur to join Jim Goa, right? Similarly, Shimshri is also a very great college with respect to ROI. NIBM, especially for those people who actually want a career in banking sector, I think NIBM is doing an absolute great job. Talking about NIA, NIA stands for National Insurance Academy, and I think it is a very renowned institute when it comes to person who wishes to make a career in the insurance sector. Wellinger is also although Wellinger is a tier 2 college, but I mean it's okay. I mean it's decent, right? I mean it is not in the league of, let's say, JBIMS, Jim Goa, Shimshri or NIBM, etc. But it's a okay college, right? Uh, Similarly, Great Lakes Chennai is also a very good institute, guys. So I think you should actually focus on CMAT. CMAT, I would say, is actually a backdoor entry to many of the colleges, like many of the good colleges, like JB, Jim Goa is there, Shimshri, NIBM, right? So I think you should actually focus on that. Moving on to the next slide. Now talking about the paper pattern. So the paper actually consists of around 5 subjects, which are quants and DI. Then it is 20 questions per section, and the difficulty level is around moderate to high, right? So then is LR. LR is again 20 questions. Then again easy to moderate questions. Talking about language comprehension, it is 20 questions again with easy to moderate level of difficulty. Journal awareness is also very important, and it actually plays a huge role, around 20 marks, but it is of easy level. I would say it is was easy, right? Innovation and entrepreneurship is again 20, right? And the difficulty level is moderate. I won't say it is too easy, but neither it is too hard, right? So the total questions is around 100 and total marks is 400, which turns out that it is actually 4 marks per question, right? And you get -1 for every wrong answer. So you have to be cautious. Unlike tests, it actually has a sort of negative marking of -1, right? Moving on to the next slide. So now the major thing comes, that how can we actually prepare for this exam, right? So first of all, again, I would suggest to give 2 free mocks, right? Before even starting your preparation, right? You should actually give 2 free mocks, one in the morning and one in the afternoon session, so that which are actually available on cmatking.com, right? And you can actually you know give us get a self analysis that अभी आप कहाँ पे stand कर रहे हो, right?
तो ये सुबह एक मॉक दे दो, शाम को एक, दोपहर में एक मॉक दे दो। दोपहर में इसलिए ताकि बिकॉज़ हमारी एनर्जी थोड़ी डाउन होती है, तो उस टाइम पे आई गेस एक ज़्यादा सॉर्ट ऑफ अच्छा एनालिसिस हो जाएगा आपका, और फिर आप अपने स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट और वीक एरियाज़ को फिर से जॉट डाउन कर लो, राइट? और उसके बाद जैसा आपने एक लिस्ट बनाओगे, उसको एक पेपर पे लिख के, नाउ वी कैन एक्चुअली सॉर्ट ऑफ स्टार्ट अ स्ट्रैटेजी। ठीक है, हमें एक्चुअली ये पता चल जाता है ना, बेसिकली मॉक्स देने से ये होता है, हमें ये पता चलता है कि हमें जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ता, राइट? मॉक्स देने का सबसे अच्छा फायदा यह है दैट यू डोंट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, राइट? हमें कुछ तो आता ही होता है, और कुछ आता होता है उसको छोड़ के बाकी सब करना है, राइट? और जो आता है उसको उसको बहुत अच्छे उसको हमें और बेटर करना है, और जो नहीं आता है उसको एटलीस्ट मॉडरेट लेवल तक करना है, राइट? Now moving on to the next slide. Now talking about quantitative aptitude, right? So again, I would suggest that if you guys have maths phobia or you have not studied mathematics post your class 10th, I think you should start a little bit early so that you can actually clear all your concepts, right? Because maths actually requires speed and accuracy, right? तो इसके लिए थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट करेंगे ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, राइट? हमें इन टॉपिक्स पे आई गेस वी नीड टू फोकस ऑन, विच इज अगेन सेट थ्योरी, permutation combination, probability, time speed distance, time and works, right? SICI, stats, geography, geometry, trigonometry, function and graph, ratio percentages, etc. Not etc. I mean these are the basic crux. अगर आप इनको करोगे तो आपका मतलब 95% ऑफ द काम हो जाएगा, राइट? और अगेन इफ दोज ऑफ यू हु आर एक्चुअली लाइक इन सॉर्ट ऑफ वरी कि हमें किस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, तो बेसिकली लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ लेवल 1, ठीक है, एलओडी लेवल 1 तक आता है, इससे ऊपर सीमैट में नहीं आता है, राइट? बिकॉज सीमैट जो है ना, कैट के कंपैरिजन में तो बहुत ही लाइक बच्चा एग्जाम है, राइट? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। रीजनिंग में अगर आपको कुछ करना है तो आप फोकस कीजिए पजल्स पे, पजल्स इंपॉर्टेंट है। ब्लड रिलेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोडिंग डिकोडिंग सीरीज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सी मैट एग्जाम के लिए, राइट? और साथ ही साथ वर्बल रीजनिंग पे भी फोकस कीजिए। ये एक्चुअली जो देखिए रीजनिंग का बहुत बड़ा सिलेबस है, बट आई हैव एक्चुअली मेंशन स्पेसिफिक सॉर्ट ऑफ टॉपिक्स, राइट? पजल्स, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग सीरीज, वर्बल रीजनिंग, वो इसीलिए बिकॉज आई फील कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पीवाई क्यू एनालिसिस करेंगे तो ये सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, राइट? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। entrepreneurship ना, entrepreneurship इज एक्चुअली लाइक ना, क्या होता है, लोग इसे इग्नोर करके चले जाते हैं कि भाई ठीक है देख ही लेंगे, बट आई थिंक ये ना एक सॉर्ट ऑफ एज मेकर है। लाइक अगर आप इसमें अच्छे मार्क्स लेके आते हो तो आपको एक एज मिल जाएगा ओवर अदर्स, राइट? सो आपको इस पे फोकस करना है, किस पे? entrepreneurship थ्योरीज कुछ होती हैं, उन थ्योरीज में से क्वेश्चन आते हैं, कोई गवर्नमेंट स्कीम्स चल रही हैं या फिर लीडर इन न्यूज, राइट? सिमिलरली टैगलाइंस, इन पे फोकस कीजिए। कंपनी जो मेजर बिग कंपनीज है उनकी टैगलाइंस हो गई, राइट? सिमिलरली आजकल स्टार्टअप कल्चर बड़ा चल रहा है अपनी कंट्री में, राइट? सो स्टार्टअप्स पे आप फोकस कीजिए। स्टार्टअप की जो सीईओज हैं, और जो पर्टिकुलर कोई अगर मान लीजिए जैसे कोई यूनिकॉर्न है, राइट, या फिर किसी ने कोई बड़ी फंडिंग उठाई है, तो उस पर आप फोकस कीजिए कि भाई कितने यूनिकॉर्न इस साल कोई यूनिकॉर्न बना है। यूनिकॉर्न क्या होता है? आई गेस अराउंड $1 बिलियन की कंपनी को यूनिकॉर्न कहते हैं, राइट? तो या 100 बिलियन आई गेस, हाँ आई गेस 1000 करोड़ या 100 करोड़, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई जस्ट चेक इट ऑन द इंटरनेट, बट इट इज वट, राइट? कोई यूनिकॉर्न बना है, उस पर हमें ध्यान देना है, ठीक है? कोई भी कंपनीज जो फेमस कंपनीज है उनकी टैगलाइंस पे थोड़ा सा हम ध्यान दे सकते हैं। सिमिलरली कोई लीडर अभी न्यूज़ में है, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड, मान लीजिए कोई लीडर कभी न्यूज़ में होता है, जैसे मान लीजिए जीरोधा के फाउंडर या कोई भी, राइट? जो आपको लगता है कि प्रेवलेंट लाइक प्रोमिनेंट है, ऐसे नहीं कि सभी को कर लिया, ठीक है? जो आपको लगता है प्रोमिनेंट है, लाइक अश्नीर ग्रोवर इज आल्सो इन न्यूज़, like although for some xyz reasons I'm like not going into that, but at least he is in news, right? So he was also an entrepreneur of Bharat Pay and stuff, right? So even that is important, right? Similarly entrepreneurship theory जो होती हैं, they are also very important, because उससे क्या आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके, ठीक है? Don't worry, you will get this material on cmatking.com. You can always refer all the courses under the जो भी मैं बोल रहा हूँ, आप cmatking.com पे जाइए, आपको डिटेल्ड स्ट्रक्चर और डिटेल्ड एनालिसिस के साथ सारे सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। इनफैक्ट आपको और डीप एनालिसिस के साथ एक स्ट्रैटेजी मिल जाएगी, राइट? Moving on to the next slide, I think general awareness is also a very sort of edgy part in CMAT exam, right?
अच्छा, दो इसमें अच्छी बात पता है क्या है, दैट इफ यू आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर टेस्टनेट और सीमैट, ठीक है, तो दोनों का प्रिपरेशन आई गेस करीब करीब हो ही जाता है। बस इसमें एडिशन ये है कि इसमें आपका एंटरप्रेन्योरशिप भी आ जाएगा, उसमें वाला उसमें एंटरप्रेन्योरशिप नहीं आता है, राइट। आपका टेस्टनेट में एंटरप्रेन्योरशिप नहीं आता है, राइट। सो आप दोनों की भी तैयारी एक साथ कर सकते हैं, राइट। सो नाउ टॉकिंग अबाउट, बट येस इफ यू वांट कि नहीं मेरे को सिर्फ सीमैट फोकस करना है, तो आप cmatking.com पे जाइए। बट इन केस यू वांट कि नहीं मेरे को टेस्ट पे फोकस, सिर्फ ओनली टेस्ट फोकस हूं मैं, तो टेस्टकिंग.com पे जाइए, राइट। खैर, जनरल अवेयरनेस की मैं बात करूं तो यू हैव टू स्टडी मॉडर्न हिस्ट्री। व्हाट इज मॉडर्न हिस्ट्री? रिवोल्ट ऑफ 1857 से लेके 1947 तक का आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, राइट। पॉलिटी इज, व्हाट इज पॉलिटी? योर पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद आपके प्राइम मिनिस्टर, इन सब का इलेक्शन कैसे होता है, इनकी क्या कहते हैं, ओथ क्या लेते हैं, अफर्मेशंस, ठीक है, रेजिग्नेशन कैसे देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक जो चीजें होती हैं ये आपको पता होनी चाहिए। सिमिलरली साइंस एंड टेक इज देयर। साइंस एंड टेक में आपको, आप न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हैं, कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई है उसके बारे में पढ़िए। सिमिलरली जो 10th की बेसिक साइंसेज है वो बेसिकली यहाँ तक आती है, ठीक है। स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, बुक्स, ठीक है, इन तीनों के बारे में भी आप न्यूज़पेपर से पढ़ सकते हैं, राइट। बिकॉज ये वेरी, सी न्यूज़पेपर ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिपरेशन फॉर एनी मैनेजमेंट एग्जाम, ठीक है। क्या होता है ना कि आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको दो चार बातें तो पता चलती ही चलती हैं, बट आपका सिलेबस भी आप देखेंगे कितना सारा कुछ कवर हो रहा है। सी इन्वायरमेंट आपका कवर हो रहा है, बुक्स, अवार्ड, स्पोर्ट्स, ठीक है, साइंस एंड टेक, पॉलिटी, ये सब, नॉट पॉलिटी, साइंस एंड टेक, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, बुक्स, ठीक है, ये सब चीजें, दो दीज थिंग्स आर ऑल्सो टॉट एट cmatking.com। वहां पे आपको शायद आपको एक बहुत ही पर्सनलाइज्ड और इनफैक्ट एक डिटेल्ड वे में भी पढ़ाया जाएगा। बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि न्यूज़पेपर पे ब्रश तो मार लेना चाहिए, सुबह सुबह एडिटोरियल तो एटलीस्ट एक बार पढ़ लेना चाहिए, तो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स भी काफ़ी अच्छी होंगी, एंड मोर ओवर आपकी वर्बल में भी काम आएगा, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर ऑल्सो आप cmatking.com से पढ़ेंगे, आपको सब पढ़ा दिया जाएगा, इसकी डोंट हैव टू वरी मच। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, इंग्लिश। इंग्लिश एक्चुअली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, किसी भी मैनेजमेंट एग्जाम में, चाहे वो कैट हो, सीमैट हो, जैट, टेस्टनेट, एनी एग्जाम यू नेम इट, इंग्लिश एक्चुअली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट। और अच्छी बात यह है ना कि इंग्लिश में नंबर खींचे जा सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमें देखना है कि आरसीज और वोकैब पे हमें फोकस करना है ना। आरसीज और वोकैब को कैसे ठीक करें? आरसीज के लिए अगेन न्यूज़पेपर, वोकैब के लिए अगेन न्यूज़पेपर। द हिंदू का देखो मैंने मेंशन भी किया दैट यू नीड टू रीड एटलीस्ट हिंदू का जो एडिटोरियल है वो तो पढ़ो, ठीक है। अब आप, लाइक फॉर एग्जांपल सम ऑफ यू माइट से कि यार हमने तो आज तक कभी पढ़ा ही नहीं है। अब नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, इंडियन एक्सप्रेस से स्टार्ट करो, इंडियन एक्सप्रेस के थोड़े दिन बाद हिंदू पे आ जाओ, एडिटोरियल पढ़ोगे दिमाग खुलता है। दूसरी बात, दो चार नए वर्ड्स भी पता चलते हैं आपको, राइट। सिमिलरली नॉर्म, फिर आप, हाँ, नॉर्मन लुइस की बुक है वर्ड पावर मेड इजी, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बुक। क्यों? इसमें ना इसके एक्चुअली सेशंस बने होते हैं, इसके जो सेशंस होते हैं, राइट, वो आपको करने चाहिए। वो इसलिए करने चाहिए ताकि आपका एनोलॉजी, सिनोनिम, एंटोनिम्स, ऑड वन आउट, ये आपका सॉर्टेड है। अगर आपने वर्ड पावर मेड इजी कर ली, ये तीन चीजें सॉर्टेड है, आपको फिर ज्यादा इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा, राइट। क्यों? इसमें आपको रूट वर्ड सिखाए जाते हैं। रूट वर्ड्स बेसिकली अगर अगर आप रूट वर्ड सीख गए तो आप वर्ड्स भी सीख जाओगे, और वर्ड सीख गए तो उनका मीनिंग भी सीख जाओगे, राइट। इसलिए वर्ड पावर मेड इजी इज अ वेरी गुड बुक। रूट वर्ड सीखने से आप डायरेक्ट किसी भी वर्ड का मीनिंग का एक रफ गेस मार सकते हो, एस्टिमेट गेस मार सकते हो विदाउट नोइंग द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, ठीक है। ये मेरे आपको कहने का मतलब है, ठीक है। सिमिलरली ग्रामर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर सी मैट एग्जाम। ग्रामर में आपका क्या आता है? ग्रामर में आपका आता है जैसे कि आपका एरर डिटेक्शन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका प्रोनाउन, नाउन आइडेंटिफिकेशन, एडजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन, राइट। सो दिस इज समथिंग विच इज यू नीड टू एक्चुअली फोकस ऑन। बट आई वुड सजेस्ट कि ग्रामर पे थोड़ा बाद में जाना, पहले इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। एनालॉजीज, ऑड वन आउट, सिनोनिम, एंटोनिम्स हो गया, ठीक है। हिंदू, सॉरी, आरसीज और वोकैब, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, इसको जरूर करना है आपको, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नाउ आई गेस ऑल दी स्लाइड्स, जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, आई होप आप सभी को समझ में आई होगी ना, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आई, यू कैन ऑलवेज आस्क डाउट इन द कमेंट सेक्शन एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर यू, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द वेरी नेक्स्ट स्लाइड एंड विच इज द, आई गेस, सेकंड लास्ट, या इट इज एक्चुअली द सेकंड लास्ट स्लाइड। नाउ यार देखो, नाउ आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपको सीमैट में सच्ची में कुछ अच्छा कॉलेज उठाना है, ठीक है, आपका टारगेट होना चाहिए 99 प्लस, ठीक है।
भाई 99 प्लस से नीचे बात ही मत करना। अगर सीमेट में अगर कोई ढंग का मीन्स कुछ ऐसा कॉलेज कि जो 2 साल बाद आप निकलो तो आप एट पार आईएम्स हो या न्यू आईएम्स हो, ठीक है। अब आप ये भी आई गेस सम ऑफ यू माइट बी वंडरिंग कि आईएम्स की टक्कर कौन सा कॉलेज दे रहा है। जमनालाल बजाज इज अ वेरी गुड कॉलेज, ठीक है। जमनालाल बजाज में अगर आपका होता है तो आई थिंक आरओआई पर्सपेक्टिव में भी बहुत तगड़ा है, पैकेजेस में भी बहुत तगड़ा कॉलेज है भाई, ठीक है। इसको ऐसी सीईओ फैक्ट्री थोड़ी बोला जाता है। मेनी ऑफ द फेमस सीईओज ऑफ आवर कंट्री हैव एक्चुअली सॉर्ट ऑफ ग्रेजुएटेड फ्रॉम जेबीआईएमएस, ठीक है। तो आप उसको रैंक करो अगर आप ऑल इंडिया कैंडिडेट हो और आपकी टॉप 10 रैंक, ठीक है। टॉप 10 रैंक लाओ, जमनालाल में सीट पाओ, सिंपल है। मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए कि आप टॉप 10 के लिए ही टारगेट करें, ठीक है। और आपकी टारगेट परसेंटाइल जो होनी चाहिए ना 99 प्लस होनी चाहिए, ठीक है। जमनालाल के लिए नहीं, जमनालाल के लिए तो अगर आपको परसेंटाइल में से जाननी है तो इट इज 99 पॉइंट, आई गेस इफ आई एम नॉट wrong it is 99.8 something or 9 something, you just check it on mhcet.com, ठीक है। एमएचसीईटी की वेबसाइट पे आप जाइए, वहाँ पे चेक किए आपको मिल जाएगी, ठीक है। बट आपको टॉप 10 में एक रैंक लानी ही लानी है, ठीक है। क्या उससे ऊपर नहीं रैंक में, उससे ऊपर भी आई गेस मिल जाती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 15 तक आई गेस चला जाता है। बट मैं कहता हूँ यार टॉप 10 में जगह लाओ और अपनी पक्की सीट कर लो, ठीक है। जमनालाल में जाओ, मजे मारो, ठीक है। बहुत बढ़िया कॉलेज है, 2 साल में 6 लाख रुपए की फीस है, बढ़िया पैकेज लेके निकलोगे, ठीक है, मस्त वाला। अच्छी वहाँ पे अगर मेहनत करते हो तो वहाँ जाके ढीला नहीं होता है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन। हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट कैच ये है कि इफ यू वांट टू एक्चुअली बी एलिजिबल फॉर महाराष्ट्र कॉलेज, जैसे कि जेबी से महाराष्ट्र कॉलेज, ठीक है। तो सच कॉलेजेस दे एक्चुअली टेक एम एच सी टी का स्कोर उनको, मतलब वो इट इज एक्चुअली एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब बेसिकली आपको सीमैट तो देना ही देना है, आपको एम एच सी टी भी देना है। पर कैच ये है कि एम एच सी टी में आपको सिर्फ पास होना है, ठीक है। आपको उसमें कोई ये नहीं कि मेरे को टॉप मारना है एम एच सी टी में। वो एक क्यों क्यों ऐसा क्यों है, बिकॉज ये जो सारे हैं ना महाराष्ट्र के कॉलेजेस हैं, सो महाराष्ट्र कॉलेजेस के लिए आपको एमएससीईटी में भी अपीयर होना पड़ेगा। सो लाइक फॉर एग्जांपल जमनालाल बजाज हो गया, इसके लिए भी आपको एमएससीईटी में अपीयर होना पड़ेगा। एमएमएस प्रोग्राम के लिए, पीजीडीएम के लिए नहीं, एमएमएस प्रोग्राम के लिए। अब एमएमएस और पीजीडीएम में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है, बस यही है कि महाराष्ट्र में एमएमएस बोल देते हैं उसे, ठीक है। अब कई कॉलेजेस महाराष्ट्र के अंदर हैं, जैसे वेलिंकर हो गया, वो पीजीडीएम भी प्रोवाइड कर रहे हैं और वो एमएमएस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। फर्क क्या है, अगेन ऐसे करिकुलम में कोई फर्क नहीं है, पर आपकी प्लेसमेंट में जरूर फर्क आता है, ठीक है। और फीस में भी फर्क आता है। पीजीडीएम महंगा कोर्स है और प्लेसमेंट भी उस हिसाब से है, और आपका एमएमएस जो है वो काफ़ी सस्ता है, जैसे वेलिंकर के अंदर। और आई गेस जो आपका प्लेसमेंट है वो भी मतलब फीस को तो बीट कर रहा है, ठीक है, इन टूडेज टाइम। पीजीडीएम जितना अच्छा नहीं है, बट हाँ फीस को तो बीट वो कर रहा है, ठीक है। अगेन तो आपको एम एच सी टी में भी अपीयर करना पड़ेगा, सो दैट यू कैन एक्चुअली बी एलिजिबल कि आप जेबी में जाओ। सिर्फ अपीयर करना है, ठीक है, अपीयर करो और सी मैट में बहुत बढ़िया नंबर लाओ, जेबी में जाओ, ठीक है। जेबी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद या all right, so now for more information you can always visit our website cmatking.com। आप प्लीज यहाँ पे जाइए, कोर्सेज को चेक कीजिए, कोर्सेज लीजिए। बिलीव मी गाइस, आपको पूरी टेस्ट सीरीज मिलेंगी, प्रॉपर शेड्यूल कोर्सेज। उसके बाद आपकी स्ट्रैटेजी इससे ज़्यादा डिटेल, जो भी मैंने बताया उससे ज़्यादा बेटर और डिटेल स्ट्रैटेजी भी मिलेगी, ठीक है। और अच्छी बात ये कि सिर्फ नॉमिनल रेट्स में है, इट इज़ नॉट लाइक वेरी एक्सपेंसिव एंड स्टफ, राइट। द कोर्सेज आर ऑन अ वेरी नॉमिनल फी, कोई इसमें ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं है। यू विल गेट रेगुलर टेस्ट, ठीक है, मॉक्स मिलेंगे आपको, सब कुछ मिलता है, ठीक है। और सी मैट की एक प्रॉपर शेड्यूल, पता क्या है, सी मैट में ज़्यादा दिक्कत ये आ जाती है कि बच्चा ना ढीला पड़ जाता है, अगर बहुत ज़्यादा जल्दी पहले से स्टार्ट कर दे तो मेरे को ये कोचिंग इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, और मेरा कोई ऐसे मोटिव नहीं। यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस आर कोर्स cmatking.com। आप बिलीव मानिए, मेरा काफ़ी अच्छा कोर्स बना है, डिटेल्ड स्ट्रैटेजी भी है वहाँ पे, कोर्सेज भी हैं, यू कैन ऑलवेज चेक आउट। ऑल राइट।